हाय फ्रेंड्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत में 13 नंबर का चैप्टर गीतामृतम। युद्ध में महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसको गीता में भगवत गीता में लिया हुआ है, तो वहाँ से थोड़े से यहाँ पे लिए हैं श्लोक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता इज अ पोर्शन occurring in ભીષ્મ પર્વ of the મહાભારત। તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા મહાભારતના ભીષ્મ પર્વનો એક અંશ છે. મહાભારતનું જે યુદ્ધ થયું હતું તો મહાભારતનું જે બુક છે એ વખતની આ કથા છે, પણ મહાભારતના ભીષ્મ પર્વ કરીને એક પાર્ટ આવે છે. તો શ્રીમદ ભાગવત ગીતા એનો એક ખાલી ભાગ છે, એક ભાગ है उसका. There are 18 अध्याय and 700 verses in it. એમાં 18 अध्यायों અને 700 श्लोकों છે. उसमें 18 अध्याय है और 700 श्लोक है. Great battle was fought between Kauravas and Pandavas on the battlefield of Kurukshetra. कुरुक्षेत्रना मैदाનમાં पांडवों અને कौरवों वच्चे युद्ध થયું હતું. जो कुरुक्षेत्र का मैदान था उसमें पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था. On seeing his kinsmen and friends standing in opposite party, Arjuna becomes emotional and feels dejected. પોતાના સ્વજનોને અને મિત્રોને યુદ્ધમાં સામેની સાઈડ એટલે કે શત્રુ પક્ષમાં ઓપોઝિટ સાઈડ ઉભેલા જોઈને અર્જુનને દુઃખની લાગણી થાય છે, એ દુઃખ અનુભવે છે. अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को युद्ध के टाइम पे सामने साइड उसकी ऑपोजिट साइड में देख के अर्जुन को बहुत ही दुख होता है. He gives up the idea of fighting, being afraid of consequences of war. वो जस्ट युद्धના પરિણામોથી ડરી જઈને યુદ્ધને કરવાનો વિચાર મૂકી દે છે. वो अपने स्वजनों के साथ जो युद्ध करना होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा उससे डर के वो युद्ध को लीव करने को सोचता है कि युद्ध नहीं करना है, गिव अप करना चाहता है. At this juncture, Lord Krishna, acting as the carrier of Arjun, અર્જુનના સારથી બનેલા હતા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આ યુદ્ધમાં. અર્જુનના સારથી તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ તેને કર્તવ્ય અને અકર્તવ્યનો ઉપદેશ આપે છે. Advises him what he should do and what not. तो यहाँ पे अर्जुन के युद्ध के रथ अर्जुन के साथ जो युद्ध में थे तो श्री कृष्ण सारथी बने थे, उसका रथ चला रहे थे. तो तब वे अर्जुन को कर्तव्य और अकर्तव्य का उपदेश देते हैं. The preaching of Sri Krishna is well known as Bhagavad Gita in whole universe. श्री कृष्णનો આ ઉપદેશ ભગવદ્ ગીતા તરીકે પૂરા વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ છે. जब उस टाइम पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया युद्ध करने के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में, तो ये जो उपदेश दिया वो भगवद गीता के नाम से विश्व में वेल नॉन है, प्रसिद्ध है. The advice preached to Arjuna is still relevant. આ ઉપદેશ જે આપ્યો છે અર્જુનને આજે પણ એટલો જ યોગ્ય છે. यहाँ पे जो उपदेश दिया है वो आज भी इतना ही योग्य है. The Bhagavad Gita adorns the highest position in the world's philosophy. फिलोसॉफी यानी तत्वज्ञानના ગ્રંથોમાં ભગવદ્ ગીતા ઉચ્ચ સ્થાને બિરાજે છે. जो फिलोसॉफी का पुस्तकें होती है उसमें भगवद गीता सबसे पहले होता है. If everyone would be busy performing his duty without thinking of consequences, the world would be full of happiness. અગર ફળની પરવા કર્યા સિવાય પ્રત્યેક માણસ જો પોતાના કર્તવ્ય કર્મમાં लागेलो रहे तो संसाરમાં सर्वत्र सुख प्रसरी जाए છે. तो इसमें यहाँ कहा गया है कि अगर कर्म कर ले बंदा, कर्म किए जाए और उसके रिजल्ट की फल की आशा ना रखे और अपने कर्मों में ही लगा रहे तो वो संसार में हर जगह पे सुख हो जाता है. दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द गीता. गीता का ये केंद्रवर्ती उपदेश है, यानी मेन उपदेश जो गीता में है पूरी बुक के बजाय ये एक ही उपदेश है. अपने कर्म किया करो, आपको फल कभी ना कभी तो मिलेगा, लेकिन फल की आशा मत रखो. ओके.
8 slokas selected from the Gita are presented here, which successively narrate immortality of the soul, inevitability of birth and death, nature of karma yoga, dignity of learning, types of devotee, and their nature of righteous intellect. તો આમાં ગીતાના જે છે એ 8 શ્લોક પસંદ કરવામાં આવીને અહીં મૂકવામાં આવ્યા છે. આઈ થિંક यहाँ पे 7 જ છે. આમાં આત્માની અમરતા, જન્મ અને મરણની અનિવાર્યતા, કર્મયોગનું સ્વરૂપ, જ્ઞાનનો મહિમા, ભક્તના પ્રકારો તથા સ્વભાવ અને સાત્વિકી બુદ્ધિનું સ્વરૂપ, આટલી બાબતોનું નિરૂપણ થયું છે. यहाँ पे जो श्लोक दिए गए हैं गीता में से लिए गए हैं वो 7 है. उसमें हमारे आत्मा की अमरता, मृत्यु और बर्थ जो उसकी अनिवार्यता है, जन्मता है वो मरता ही है, वो हमारा कर्मयोग, नॉलेज का महिमा, जो भक्त है उनके प्रकार, उनका स्वभाव और बुद्धि, उन बाबतों का डिस्कस किया गया है. All these matters are very significant for personality development of a man. માણસના વ્યક્તિત્વના વિકાસ માટે આ બધી બાબતો ખૂબ જ મહત્વની છે. चलो अभी हम इसके शब्दार्थ और ग्रामर पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे. तो चलो ग्लोसरी देख लेते हैं. लोकः पीपल, पार्थः अर्जुना, संगः अटैचमेंट, प्रवृत्ति एक्टिवनेस, निवृत्ति इनएक्टिवनेस ऑपोजिट हो गए. अजह अनबॉर्न यानी अभी जन्म नहीं हुआ है उसका. नित्य तो एवरलास्टिंग सोल यानी हमेशा रहनारो जे आत्मा जे छे हमेशा रहे छे. शाश्वत इटर्नल कायमी. पुराण हैविंग नो बिगिनिंग. हन्यमाने शरीरे वेन बॉडी पेरिसाइज એટલે जस्ट बॉडी नाश पामती, हमारा जो शरीर नष्ट होता है वो. सर्टेन डेथ ध्रुवम जन्मेन. सर्टेन डिफाइंड बर्थ. पराम शांतिम टू इटर्नल. आर्तः अनहैप्पी. सात्विकी बुद्धि. तो वर्चियस राइटियस. अभी एडवर्ब देख लेते हैं. भूयः तो अगेन, कदाचन समटाइम्स. कंपाउंड यानी हम समास देख लेते हैं इसमें. गीतामृतम षष्ठी तत्पुरुष. अपरिहार्य तत्पुरुष. कर्मफल हेतु षष्ठी तत्पुरुष. अकर्मणि नय तत्पुरुष. संयंतेन्द्रियः बहुव्रीहि. हर्षामर्ष भयोद्वेगे इतरेतर द्वंद्व. और यहाँ पे आएगा कार्याकारी, तो भी वो इतरेतर द्वंद्व. भयाभय इतरेतर द्वंद्व. चलो अभी पार्टिसिपल देख लेते हैं. इसका भी मैंने वीडियो लगा दिया है. भूत्वा बिकमिंग. लब्ध्वा यानी भूत्वा यानी होके, होना, थईने. लब्धा तो गेनिंग यानी प्राप्त करना. शोचितम फॉर लेमेंटिंग यानी जस्ट दुख माटे, शोक करवा माटे. चलो अधिगच्छति टू एक्वायर. लभते टू गेन यानी प्राप्त करना. अधिगच्छति यानी पहुंचना. भजते टू वर्शिप. उद्दिजते टू बी परप्लेक्स्ड यानी जस्ट बेचैन होना. चलो अभी इसके हम नोट्स देख लेते हैं. न जायते इज नॉट बॉर्न. ब्रियते न डज नॉट डाई. भविता वा न भूयः नॉर विल बी अगेन. न हन्यते इज नॉट किल्ड यानी जो मरातो नहीं, हणातो नहीं. हन्यमाने शरीरे वेन पेरिसेबल बॉडी पेरिसिस. जस्ट हणाई जनारू शरीर જ્યારે નાશ પામે છે તે નાશ પામતું શરીર. जातस्य ऑफ वन हु इज बॉर्न जो पैदा होने वाला है. जन्मेला मीन्स उत्पन्न हुआ. अपरिहार्य अर्थे तो इन द अनएवॉइडेबल मैटर. माँ कर्म फल हेतु
who तो डोंट बी डिजायर्स ऑफ रिवर्स ऑफ डेट्स यानी कर्म करा करो फल की आशा मत रखो. अकर्मणि ते संगः मा अस्तु. May you not be inactive. May you not be attached to inaction. Just कर्मના અભાવમાં કર્મ ન કરવામાં તારો સંગ થશે નહીં यानी आप कर्म करते रहो कर्म न करने की बात मत करो वैसा. तत्पर रहो फॉलोइंग दैट तरत ते પછી तरत આગળ. संयतेन्द्रिय तो कंट्रोल में है. वन हु हैज कंट्रोल्ड हिज सेंस अपनी इंद्रियों को काबू में रखी हुई है. चतुर्विद्या ऑफ 4 काइंड्स यानी 4 प्रकार की विद्या. सुकृतिनः मेरिटोरियस पर्सन्स यानी अच्छे कर्म करने वाला. जिज्ञासु तो डिजायर्स ऑफ नोइंग यानी क्या बोलते हैं उसको अच्छा जानने वाला जिसको नई नई चीज़ें जाननी होती है वो. अर्थार्थी डिजायर्स ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स यानी संसार में सब कुछ कर्म करने वाला संसार का सब कुछ जानने वाला. चलो ज्ञानी लर्न. भरतवर्षभ बेस्ट किंग ऑफ भरत डेस्टिनी यानी अर्जुन. न उद्विजते नॉट परप्लेक्स्ड तो वो संताप यानी दुख या उद्वेग होता नहीं है. न उद्विजते चय हु हिमसेल्फ इज नॉट परप्लेक्स्ड जो खुद भी नहीं होता है और दूसरों को भी नहीं होने देता है हमेशा खुश में रहने वाला. हर्षामर्ष भयोद्वेगे ही बाय जॉय इंटॉलरेंस फियर एंड एंग्जाइटी. मुक्तः फ्री. कार्य ड्यूरिंग वर्क एंड एब्सेंस ऑफ वर्क. कार्य किया और नहीं किया दोनों में कर्तव्य और अकर्तव्य जैसे. भयाभय इन फियर एंड फियरलेसनेस भय में और अभय में. बंधन मोक्षम च टू बॉन्डेज एंड सेल्वेशन. व्यक्ति ही नोस सात्विकी ही इज गुड जस्ट अच्छी बुद्धि. ओके चलो अभी हम संधि देख लेते हैं. नायम तो न प्लस अयम. अजो नित्य तो अजह नित्य. शाश्वतयम तो शाश्वतः प्लस अयम. पुराणो न तो पुराणः न. ध्रुवो मृत्यु तो ध्रुवः मृत्यु. तस्मात् परिहार्य थे तो यहाँ पे डर नहीं करना है. तस्मात् परिहार्य थे तो तस्मातः अपरिहार्य अर्थे. कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मणि एव अधिकारः ते. कर्मफल हेतुर्भुः तो कर्मफल हेतु प्लस भू. संगो सत्व कर्मणि तो संगः अस्तु अकर्मणि. शांतिम चिरेणाधिगच्छति तो शांतिम यहाँ पे आगे मैंने ये संधि का वीडियो अभी अपलोड किया है. शांतिम अचिरेण अधिगच्छति. सुकृतिनो अर्जुनम तो सुकृतिनः अर्जुन. आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी तो आर्तः जिज्ञासुः अर्थार्थी. यस्मान्न द्विजते लोको लोकान्न द्विजते तो यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते. टेक्स्ट बुक एक बार लेसन आप रीड करोगे तो आपको संधि भी पता चल जाएगी. मुक्तो यह तो मुक्त यह. स च तो सह च. यो वेत्ति तो यह वेत्ति. चलो तो हम ट्रांसलेशन देखते हैं. न जायते म्रियते वा कदाचि तो न जायते तो इज नॉट बॉर्न और म्रियते न तो डज नॉट डाई यानी आत्मा के रिगार्डिंग बात करते हैं. तो आत्मा कभी जन्म तो नहीं कि मरतो नहीं. न्यायम भूत्वा भविता वा न भुवः तो भविता वा न भूयः तो और विल नॉट बी अगेन તો તે ફરી થવાનો પણ નથી કે થશે નહીં તેવું પણ નથી. અજો નિત્યઃ શાશ્વતોયમ પુરાણો. शाश्वतः यानी परमानेंट. पुराणः यानी द ओल्डेस्ट वन. अजः अनबॉर्न और नित्यः तो एवर एक्साइटिंग यानी તે સનાતન પુરાણો અજન્મા સદા રહેનારો છે. ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે તો
हन्यते, न हन्यते यानी इज नॉट किल्ड, और हन्य माने शरीरे यानी व्हेन द बॉडी इज स्लेटिन, तो शरीर मृत्यु पामता ते मरतो નથી। तो यहाँ पे आत्मा के रिगार्डिंग बात की है कि वो जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, फरी थसे या फिर होने वाला है ऐसा भी नहीं है। वो सनातन है, पुराण है, अजन्मा, सदा रहनारा है। शरीर की मौत होने के बावजूद भी वो मरता नहीं है। चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। तो यहाँ पे जातस्य, तो जिसका जन्म हुआ है, ही यानी सही में, इंडीड खरेखर, मृत्यु यानी डेथ, ध्रुव यानी डेफिनेट। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही है, और मृत्यु पामेला हुआ होता है उसका जन्म निश्चित है। तो જેનો જન્મ છે તેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને મૃત્યુ પામેલાનો જન્મ નિશ્ચિત છે। तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुं महर्षि। तो तस्मात् सो એટલે તેથી, अपरिहार्य तो आपको जो आप रोक नहीं सकते हैं, अनएवॉइडेबल वर्क यानी आप वो जो होना ही है आप उसे रोक ही नहीं सकते वैसे। तो अर्थ है इन द थिंग त्वम सोचितुम न अर्हसि, यू डोंट डिजर्व, तो आप उसको नहीं कर सकते हो। तो जैसे जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है, वैसे ही आप जिस वर्क को, जिस काम को, जिस मैटर को रोक नहीं सकते हैं उस बाबत में आपको शोक नहीं करना चाहिए, आपको दुख नहीं होना चाहिए। तो જેનો જન્મ છે તેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને મૃત્યુ પામેલાનો જન્મ નિશ્ચિત છે, તેથી રોકી ન શકાય તેવી બાબતમાં તારે શોક એટલે કે दुख लगाड़વું જોઈએ नहीं, शोक करવો જોઈએ नहीं। चलो थर्ड तो बहुत ही इजी है और बहुत बार आपने सुना भी होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्मण्य यानी आपके कर्म, आपके जो कार्य करते हैं वैसे। अधिकार तो आपके राइट, आपका अधिकार। फलेषु मा कदाचन, तो नेवर इन द रिजल्ट ऑफ फ्रूट्स। आपको यहाँ पे बोलते हैं कि आपको कर्म यानी कार्य करते रहना है, उसके रिजल्ट की आपको आशा नहीं रखनी है। आप कर्म किए जाओ किए जाओ किए जाओ, जब भी मिलना होगा आपको रिजल्ट मिलेगा ही। आगे के श्लोक में जैसे बोला, हम जिसे रोक नहीं सकते उस कार्य के लिए हमें शौक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी कर्म करना आपका राइट है, आप कर्म किए जाओ, उसका रिजल्ट क्या होगा उसके फल की बाबत में मत सोचो। चलो, माफ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगो सत्व कर्मणि। तो कर्म फल हेतु, तो यानी जो वन हुज पर्पज इन डूइंग एनीथिंग इज एंजॉय इट्स फ्रूट्स। आप जस्ट ना उसके लिए आपको ना उसके रिजल्ट की आपको आशा नहीं रखनी है, वैसे कहते हैं माते संग अस्तु, डोंट बी अटैच, अकर्मणि यानी आइडलनेस इन एक्शन। तो आप कर्म किए जाओ, उसके फल की आशा मत रखो, और कर्म न करने में भी आपका कोई साथी नहीं होना चाहिए, आप अकेले भी ही कर्म करते जाओ। तो कर्म કરવાનો જ તારો અધિકાર છે, ફળની બાબતમાં ક્યારેય નહીં। તું કર્મના ફળની ઈચ્છાવાળો થઈશ નહીં, કર્મ ના કરવામાં પણ તારો સંગ ના થાવ। चलो तो हम फोर्थ नंबर का श्लोक देखते हैं अभी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो श्रद्धावान यानी हु हैज फेथ यानी जिसमें श्रद्धा हो, जिसको श्रद्धा हो। तत्परः डिलीजेंट। संयतेन्द्रियः, तो जिसने अपने इंद्रियों को काबू में किया हुआ है। तो श्रद्धावान જ્ઞાન લબ્ધ જ્ઞાનમ, તો નોલેજ પ્રાપ્ત કરતા है। શ્રદ્ધાવાન જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, સાવધ અને જેની इंद्रियों काबूમાં હોય છે તે। जस्ट जो श्रद्धावान है, जिसके पास श्रद्धा है, जिसमें श्रद्धा है, वो बहुत ही शांति से अपने इंद्रियों को काबू में लेके नॉलेज को प्राप्त करता है, गेन करता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। तो यहाँ पे लब्ध्वा यानी प्राप्त करना, हैविंग ऑब्टेन। परम शांतिम, तो हाईएस्ट शांति यानी एकदम से शांत रहना, शांति, परम शांति जिसको बोलते हैं।
अधिगच्छति यानी प्राप्त करना, अचिरेंट ટાઈમ નો ટાઈમ જસ્ટ. તો શ્રદ્ધાવાન જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, સાવધ અને જેની ઇન્દ્રિયો કાબૂમાં હોય છે તે પ્રાપ્ત કરીને थोड़ा समय में परम शांति पामे છે. कि जो श्रद्धावान है उसके पास ही नॉलेज आता है, अपने इंद्रियों उसके काबू में होती है, वो थोड़े ही समय में अपने ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को पामता है, अचीव करता है. फिफ्थ, चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुनः. तो यहाँ पे अर्जुन को रिलेट करके बात की गई है कि भरतवर्ष, यहाँ पे भरतवर्ष का जो राजा था यानी अर्जुन, भरतवर्ष में पूरा श्लोक पढ़ लेते हैं. आर्तो जिज्ञासुर थार्थिम ज्ञानीम च भरतर्षभ. तो यहाँ पे भरत वंश के राजा जो उत्तम राजा थे उसको अर्जुन, भरत वंश का उत्तम राजा यानी यहाँ पे अर्जुन चतुर्विद्या यानी 4 विद्याओं में जो आगे है. सुकृतिन तो राइटियस पर्सन यानी सही पर्सन. जिज्ञासु तो हैविंग डिजायर ऑफ नॉलेज यानी कुछ नया जानने की इच्छा. अर्थार्थी डिजायर्स ऑफ मटेरियल थिंग्स. ज्ञानी वन विथ नॉलेज. ओके, तो चलो यहाँ पे हे अर्जुन उत्तम भरतवंशी राजा. तो यहाँ पे आपको पूछते भी है कि उत्तम भरतवंशी राजा कौन, तो यहाँ पे अर्जुन. 4 પ્રકારના સદાચારી માણસો મને ભજે છે, તે છે આર્થ, जिज्ञासु, अर्थार्थी અને ज्ञानी. यहाँ पे कृष्ण भगवान जब अर्जुन को उपदेश देते हैं जो गीता में लिया है, भगवत गीता में, तो वो कहते हैं कि 4 किस्म के आदमी होते हैं जो सदाचारी होते हैं, वो ही मुझे भजते हैं यानी मेरी भक्ति करते हैं. तो वो है आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 लोग. चलो अभी 6 नंबर का देखते हैं. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे ही मुक्तो यः सह च मे प्रिय. तो यहाँ पे 6 नंबर के श्लोक में क्या देखते हैं, चलो अभी यहाँ पे है नो द्विजते यानी डज नॉट परप्लेक्स्ड. लोकान्नो द्विजते तो डज नॉट गेट फेड अप यानी गुस्सा, उद्वेग जो होता है वो गुस्सा, वन टाइप ऑफ ऐसा. मुक्त है यानी फ्री. यस्मात यानी फ्रॉम होम. तो જેનાથી કોઈ ઉદ્વેગ પામતું નથી અને જે પોતે પણ બીજા કોઈથી ઉદ્વેગ પામતો નથી, જે હર્ષ, અમર્ષ, ભય અને ઉદ્વેગથી મુક્ત થયેલો છે તે મને પ્રિય છે. तो यहाँ पे लिखा है, कहा गया है, कहा कहते हैं श्री कृष्ण भगवान जो उद्वेग नहीं पामते यानी बेचैन नहीं होता, उसको गुस्सा नहीं आता, जो शांत है वैसे, और जो खुद से नहीं होता और दूसरे से भी नहीं होता है અને જે પોતે પણ બીજા કોઈથી ઉદ્વેગ પામતો નથી, જે હર્ષ, અમર્ષ, ભય અને ઉદ્વેગથી મુક્ત થયેલો છે यानी जिसको खुशी, गम, गुस्सा, गुस्सा नहीं होना, वो सबसे जो फ्री है वो ही मुझे प्रिय है. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च यो वेत्ति बुद्धिः सा पार्थे सात्विकी. तो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च यानी जो प्रवृत्त भी है और जो निवृत्त भी है यानी जो एक्टिव है और जो एक्टिव नहीं है वो. कार्य कार्य यानी जिसने काम किया है वो या फिर नहीं कर रहा है वो. भयाभय भय जिसको भय है और जो अभय भी है. बंधम मोक्षम जो बंधा हुआ है और जो फ्री है यानी मोक्ष वाला है. तो वेत्ति नोस. सा बुद्धि दैट इंटेलेक्ट. सात्विक यानी बेस्ट, सात्विक, अच्छा सा वैसा. तो वो बोलते हैं यहाँ पे सा पार्थ लास्ट में लाइन में है तो हमें आगे लेना है. जब हम किसी से बात करते हैं तो एज अ संबोधन, हे पार्थ जे प्रवृत्ति અને નિવૃત્તિ, કર્તવ્ય અને અકર્તવ્ય, ભય અને અભય, बंधन અને મોક્ષને જાણે છે તેની सात्विक बुद्धि છે. तो ये बोलता है कि इसको ही नॉलेज दे रहा है ना श्री कृष्ण भगवान, अर्जुन को नॉलेज दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं. तो हे पार्थ જે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ જાણે છે, કર્મ કરવું, કર્તવ્ય અને અકર્તવ્ય પણ જાણે છે, ભય અને અભય રહેવું એ પણ જાણે છે, બંધન અને મોક્ષ જાણે છે, તેની बुद्धि ये सात्विक बुद्धि છે. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रांसलेशन भी ख़त्म होता है. चलो अभी हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं. अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनोत.
तो फर्स्ट, कह न जायते म्रियते वा कदाचित। ऑप्शन है क मनुष्य, ख भक्त, ग आत्मा, घ देह। तो सही जवाब है ग आत्मा। सेकंड, कस्य मृत्यु ध्रुवः। ऑप्शन से क पदार्थस्य, ख जातस्य, ग धनस्य, घ आत्मनः। तो सही जवाब है ख जातस्य। थर्ड, कस्मिन् अर्थे त्वं न शोचितुमर्हसि। ऑप्शन से क अपरिहार्ये, ख परिहार्ये, ग मरणे, घ दुखे। तो सही जवाब है क परिहार्ये। 4, कस्मिन् ते संगः न स्यात्। ऑप्शन है क कर्मणि, ख अकर्मी, ग ज्ञाने, घ घने। तो सही जवाब है ख कर्मणि। 5, ज्ञानम कह लभते। तो ऑप्शन से क भक्तिवान, ख गुणवान, ग श्रद्धावान, घ धनवान। सही जवाब है ग श्रद्धावान। 6, कति विद्याः भक्ताः भवन्ति। ऑप्शन से क चतुर्विद्या, ख द्विविद्या, ग त्रिविद्या, घ एक विद्या। तो सही जवाब है क चतुर्विद्या। चलो, एक वाक्य संस्कृत भाषा उत्तर। एग्जाम में एक मार्क में इतने ही पूछते हैं, डाइजेस्ट में बहुत ज़्यादा है, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में से ही पूछते हैं। फर्स्ट, अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः कः। तो आत्मा अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः च। मृतस्य किं ध्रुवं। तो मृतस्य जन्म ध्रुवम्। कस्मिन् ते अधिकारः अस्ति। कर्म करो, कर्मणि ते अधिकारः अस्ति। 4, कदा शान्तिम् अधिगच्छति। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अधिगच्छति। कः भक्तः भगवतः प्रियः। तो हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तः स भक्त भगवत प्रियः। चलो, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उसमें से ही पूछा है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं, एक बार लेसन पढ़ लेना, मिल जाएगा। तो न जायते म्रियते वा कदाचित आत्मा, कर्मणि वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये तो हम बोलते तभी हमारे मन में आ जाता है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षम। तो ये आपको पाँचवें श्लोक में दिया हुआ है, वैसे ही लाइन ही है, आपको फिलअप करनी है। बंधम मोक्षम च यो वेति सा बुद्धि सात्विकी। चलो, 5, रेखांकित पदानां स्थाने प्रश्नवाक्यम पदम लिखित्वा प्रश्नवाक्यम रचयत। ये आपको जो अंडरलाइन दिए है, उसमें आपको जो ब्रैकेट में दिया है वो शब्द रख के क्वेश्चन मार्क बनाना है और पीछे क्वेश्चन मार्क रखना है। फर्स्ट, आत्मा हन्यमाने शरीरे न हन्यते। तो आत्मा किद्र से शरीरे न हन्यते, ये जो वर्ड्स दिए हैं, कम किद्र से, किम किद्र से, कस्य, उसका क्या वर्ड होता है और क्या मीनिंग होता है और कैसे यूज़ होता है, वो मैंने एक वीडियो बना रखा है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, देख लेना। ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अधिगच्छति। तो किम लब्ध्वा शांतिम अधिगच्छति। सुकृतिनः जनाः मां भजन्ते। तो सुकृतिनः जनाः कम भजन्ते। 4, सा बुद्धि ही सात्विकी वर्तते। तो सा बुद्धि किद्र से वर्तते, पीछे क्वेश्चन मार्क रखना ही रखना है। चलो, संधि टेक्स्ट बुक वाली है। अजो नित्य, तो अजह नित्य, इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। शाश्वतोयम, तो ड नहीं बोलना है। शाश्वतोयम, तो शाश्वतः प्लस अयम। कर्मणि वा अधिकारस्ते, तो कर्मणि प्लस एव प्लस अधिकारः प्लस ते। संगोत्स्तव कर्मणि, तो संगः प्लस अस्तु प्लस अकर्मणि। चलो, समास प्रकार। गीतामृतम, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। अपरिहार्य, नय तत्पुरुष समास। संयंत्रेंद्रिय, तो बहुव्रीहि जिसकी इंद्रिय कंट्रोलित है। हर्षामर्ष भयोद्वेगाः, तो इतरेतर द्वंद्व। भयाभये, इतरेतर द्वंद्व समास। चलो, हम अभी अर्थ विस्तार देख लेते हैं इसके। कर्मणि वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भुः, मा ते संगोत्सव कर्मणि। तो यू हैव ए, पहले तो आपको इसका ट्रांसलेशन लिखना है और बीच में इसकी इंफॉर्मेशन। तो यू हैव ए राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, बट यू आर नॉट एंटाइल्ड टू द fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, nor be attached to inaction.
Don't be lazy in the work. This is an extremely popular verse of the Bhagavad Gita. We have the right to do our duty, but the results are not dependent only upon our efforts. We are able to focus entirely on our efforts, and the result is even better than before. We must give up the ego of doing, remembering that God is the only source of the power by which we perform all our actions. In such cases, instead of running away from it, we must understand and implement the proper science of work as explained by Sri Krishna to अर्जुन. चलो अभी सेकंड देख लेते हैं. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिं चिरेणाधिगच्छति. Those whose faith is deep and who have practiced controlling their mind and senses attain divine knowledge. Through such transcendental knowledge, they quickly attain ever wrestling supreme peace. Faith is the seed of success even in worldly matters. The degree of faith in the Shastras and the teaching of the Guru determine the degree of success. Divided aims and distracted minds achieve nothing. The personality of man, complete and entire, should be dedicated to the spiritual aim. Peace is in the knowledge of Atma and nowhere else. Early little satisfaction which one desires from small pleasures and successes here and there in the world are only shadows of the real peace of the self. When such faith is placed upon a wrong personality, it can lead to disastrous consequences. But when it is placed on the true Guru, it opens the pathway for eternal welfare. थर्ड देखते हैं. चतुर्विद्या भजन्ते मा जनाः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानीं च भरतर्षभ. चलो अभी ये. Four types of virtuous men worship me, O Arjun: the man in distress, the man seeking knowledge, the man seeking enjoyment, and, O best of the Bharatas, the man involved with wisdom. Men in distress remember the Lord and pray to Him for the removal of their difficulties and sorrows. These are people who are eager to know and understand the Lord. Great research is carried on into the objective world, and people are spending their high intelligence and energy in these material pursuits only. Men who seek prosperity are the third type of devotees. Their object is to enjoy worldly prosperity in the various fields of human life. The man of knowledge knows the real nature of the Lord and is able to discriminate between the true and the illusory. He has attained the self state and lives in constant absorption in Atma. Thus, the four classes of men are included among the Lord's devotees. They are all righteous men. चलो समानार्थी शब्द देख लेते हैं हम. पुनः तो भूयः, शाश्वतः तो नित्यः, निश्चितः ध्रुवः, व्यग्रः तो उद्वेगः. विरोधार्थी. मृतस्य तो उसका ऑपोजिट जातस्य, चिरेण तो अचिरेण, अकार्यम तो कार्यम, शाश्वतः तो अशाश्वतः. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये 13 नंबर का चैप्टर कंप्लीट होता है. आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा. पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.